Hello friends, welcome to Manu Law Classes. मेरा नाम गौतम दीक्षित है. Today in this video we are going to discuss the most important news from the Daily Hindu edition of 10 September 2022. So let's move to the first news. That is, we have done yesterday that India and China, they are going to take up remaining LAC issues, that is line of actual control issues. ठीक है, तो हमने कल पढ़ा था कि इंडिया एंड चाइना आफ्टर 16 कमांडर लेवल टॉक विच वाज हेल्ड इन जुलाई 2022 नाउ दे हैव डिसएंगेज फ्रॉम पेट्रोलिंग पॉइंट 15. दिस पेट्रोलिंग पॉइंट 15 इट इज़ इन गोगरा हॉट स्प्रिंग एरिया. फाइन. तो ये जो डिसएंगेजमेंट है ये हुआ है बिफोर द SCO समिट विच इज़ गोइंग टू बी हेल्ड इन समरकंद इन उज्बेकिस्तान. ओके, so it has happened 3 days before the Shanghai Cooperation Organization summit where Prime Minister Narendra Modi and Chinese President Xi Jinping all are going to attend in Samarkand. Fine. उसके बाद अगर हम देखेंगे यहाँ पे नवंबर 2019 से दोनों जो लीडर हैं नरेंद्र मोदी एंड Xi Jinping they have not spoken. The last time they spoke was in Brasilia during the BRICS summit. Okay. Now already there are certain more issues, certain more friction points or friction areas. Those are called as Demchok and Depsang. So here now see Beijing has commented that the difficulties may still lie ahead, okay, to resolve differences in the remaining friction areas. तो जो remaining friction areas हैं इनको legacy issues भी कहते हैं. They are also called as legacy issues. Legacy issues का यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि वो areas जो friction point रहे हैं इंडिया और चाइना के बीच में before the Galwan Valley clash. The second thing is massive build-up of troops. So if you will just see that more than 50,000 troops on each side remain deployed on both the sides. Okay. Now there are certain areas from where the disengagement has taken place earlier. So it is about disengagement in 5 other areas including Galwan Valley, Pangong Tso Lake, Patrolling Point 17A in Hot Spring. Fine. So these are some of the important news. The next is now let's go further. So taking news from here. So Bilkis case, Supreme Court seeks remission report. तो अब जैसा कि हम जानते हैं बिल्किस बानो केस में ये हुआ था कि जो गुजरात में इनको there were 11 convicts, they were remitted. Okay, they were given remission based on 1992 policy of remission. ठीक है. उसके बाद जो है यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जो है वो गवर्नमेंट से गुजरात गवर्नमेंट से कहा है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं विच आर कंसर्न विद रेमिशन विच वर ग्रांटेड टू 11 कन्विक्ट्स हु वर सेंटेंस्ड टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट इन बिल्किस बानो गैंग रेप केस उसको सुप्रीम कोर्ट में रखा जाए. ठीक है. तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो इशू ये है कि मई 2022 में जो एपेक्स कोर्ट है इट हैड डायरेक्टेड द गुजरात गवर्नमेंट to consider the application of one of the convicts, that is Radheshyam Bhagwan Das Shah, जिसको लाला वकील भी कहते हैं, for the premature release in terms of its remission policy of July 9, 1992. ओके, तो ऐसा जो गुजरात में जो रेमिशन पॉलिसी है वो अपडेट हुआ था 2014 में, पर जो इनकी कन्विक्शन हुई थी उस वक्त 1992 पॉलिसी वॉज देयर. तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जो इनकी जो गुजरात गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट से पूछा भी था कि इनकी जो रेमिशन अगर होती भी है तो किस पॉलिसी के अंदर होगी. सो इट वाज अंडर द पॉलिसी ऑफ जुलाई 9, 1992. फाइन. तो कोर्ट ने ऐसा जजमेंट क्यों दिया था? सो द कोर्ट हैज फॉलोड ऑन स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस जगदीश विच हेल्ड that the policy applicable at the time of conviction must be considered for deciding an application of premature release. So this is very important. Okay, state of Haryana versus Jagdish. फाइन. उसके बाद एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट से पूछा गया कि गुजरात गवर्नमेंट अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है टू गिव द रेमिशन या महाराष्ट्र गवर्नमेंट, क्योंकि जो इसकी ट्रायल हुई थी वो महाराष्ट्र में हुई थी. तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नो, अंडर सेक्शन इट विल बी द गुजरात गवर्नमेंट विच विल बी एन अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 432 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर टू डिसाइड द रेमिशन ऑफ द कन्विक्ट्स इन द केस. ठीक है. अब यहाँ पे देखिए प्रॉब्लम कुछ ऐसा आया हुआ है कि एक तो जो ये केस है जो है वो काफ़ी हाईलाइटेड केस था
or because if you will just see that 14 persons they killed a pregnant woman and several other women were raped. The 3-year-old child had her head smashed on the ground. ओके, ये जुर्म है, ठीक है ना, जिसके लिए इनको अरेस्ट किया गया था और इनको बाद में लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया गया था. Now we have one person, Siddiqui Kappan. So Supreme Court has given bail to Kerala journalist Siddiqui Kappan. तो इनको अरेस्ट किया गया था उत्तर प्रदेश में फॉर रिपोर्टिंग ऑन द केस रिलेटेड टू हाथरस रेप. ओके, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अभी तक कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं प्रोड्यूस किया गया है. द कोर्ट हैज सेड मटेरियल शोन बाय उत्तर प्रदेश एज अ टूल किट टू इंसाइट रायट्स रिलेटेड टू अ फॉरेन कंट्री. ओके, सो मिस्टर जो सिब्बल हैं, ओके, इन्होंने कहा कि दे वेर एसोसिएटेड विद हैपनिंग्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स. उसके बाद द मैन दैट इज कप्पन, ही हैज़ ऑलरेडी गॉन अंडर कस्टडी फॉर ऑलमोस्ट 2 years. एंड इज देयर एनी इमीडिएट प्रोस्पेक्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन सीइंग अ सॉर्ट ऑफ कल्मिनेशन. मतलब सीजीआई ने पूछा है कि क्या इनके खिलाफ जो इन्वेस्टिगेशन होने वाला है, 2 साल हो गए अभी तक इन्वेस्टिगेशन चालू हुई है, तो क्या कोई ऐसा मटेरियल प्रोड्यूस किया जा सकता है कि ओके. So over here, Mr. Jethmalani, he has said a delay was due to something turning approval and it would be completed in 2 months. तो इस बेसिस पे चीफ जस्टिस जो है यूयू ललित, ही ग्रांटेड बेल टू सिद्दीकी कप्पन हु हैज ऑलरेडी सर्व 2 years इन जेल अंडर UAPA, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट. हमने जब NCRB का डिटेल किया था तो हमने वहाँ पे ये देखा था कि UAPA के अंदर कन्विक्शन रेट काफ़ी कम है. Okay, so this is also one of the case which is related to UAPA. Now again related with India China. So army in Arunachal Pradesh has received the modern artillery. So if we will just see, Sig Sauer rifles, Negev light machine guns, Carl Gustav MK 384 mm rocket launchers, digital spotter scopes, fuel seal chargers, patrols. Okay, these are all have been given to the in Arunachal Pradesh, that is the eastern sector of the LAC. अगर आप LAC का देखेंगे तो वेस्टर्न सेक्टर, मिडल सेक्टर एंड ईस्टर्न सेक्टर है. तो जो अरुणाचल प्रदेश है इट लाइज इन ईस्टर्न सेक्टर. साथ साथ में देयर इज इंडिजिनियस UAV ऑल्सो फॉर कैरिंग आउट रिकॉनेसेंस इन दैट एरिया. नाउ द नेक्स्ट इज related to Queen Elizabeth death. So India has announced a day of national mourning on Sunday, मतलब कल, to mark the passing of Queen of United Kingdom Elizabeth II. She was the longest reigning monarch of United Kingdom. The next is यहाँ पे एक अवार्ड के बारे में हम बात कर रहे हैं, that is बिजनेस लाइन चेंज मेकर अवार्ड, जो आपने फ्रंट पेज पे भी देखा था. So it was awarded by Union Finance Minister Nirmala Sitharaman. ठीक है. So here if you will just see that this award, if you will just see, has been given, okay, for making change in the economy, for doing the inspirational work in areas that need urgent attention. The next is the Supreme Court takes up pleas against Places of Worship Act. So Supreme Court has said has now taken up the plea which is challenging the validity of Places of Worship Act 1991. तो जो Places of Worship Act है 1991, उसके एक कट ऑफ डेट है. उसी कट ऑफ डेट को लेके पूरी लड़ाई है यहाँ पे. तो जो कट ऑफ डेट है August 15, 1947. So the petitioners who have filed this petition, they say कि ये जो कट ऑफ डेट है August 15, 1947, okay, this has been arbitrarily decided and it illegally bars Hindus, Jains, Buddhists and Sikhs from approaching courts to reclaim their places of worship which were invaded and encroached upon by fundamentalist barbaric invaders. Okay, तो यहाँ पे है कि the main objective of the petition is to set right a historical wrong. कि मतलब August 15, 1947 एक डेट डिसाइड हुआ है, पर जो बहुत सारे मंदिर जो हैं, बहुत सारे जो रिलीजियस प्लेसेस हैं विच बिलोंग टू हिंदूज, जैन्स, बुद्धिस्ट एंड सिख्स, उनका कन्वर्जन हो गया था बहुत पहले. ठीक है. तो ये जो डेट है दैट इज August 15, 1947, क्योंकि इस एक्ट के अंदर क्या है कि
अगस्त 15 1947 के बाद जो रिलीजियस कैरेक्टर है या उस दिन जो रिलीजियस कैरेक्टर था, ठीक है, वही रिलीजियस कैरेक्टर मेंटेन रहेगा, ठीक है। देयर वर सर्टेन एक्सेप्शंस, वन ऑफ द एक्सेप्शन वाज अ बाबरी मस्जिद मॉस्क, ओके। सो दिस एक्ट वाज पास्ड इन 1991। तो अब इस डेट को लेके पूरी लड़ाई चल रही है सुप्रीम कोर्ट में, ओके। सो नाउ सुप्रीम कोर्ट हैज नाउ a plea which is challenging this date. The next important news is make anti-TB campaign a mass movement. President, so President Draupadi Murmu, she has launched the प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान, ओके। तो अगर हम देखेंगे ट्यूबरक्लोसिस इट कॉज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ डेथ्स अमंग ऑल अदर इन्फेक्शियस डिजीज इन द कंट्री, मतलब इंडिया, and India which has little less than 20% of the world's population but it has more than 25% of the total TB patients of the world, okay। तो यहाँ पे देखेंगे कि TB की एक और ख़ास बात है सोशियो इकोनॉमिक कैरेक्टर ऑफ द डिजीज। तो इफ़ यू विल जस्ट सी दैट TB इट अफेक्ट्स पीपल मेनली फ्रॉम पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, फाइन। So over here if you will just see that this program it aims to eliminate TB by 2025. But if you will just see United Nations Sustainable Development Goals, so it has set the target that all nations shall eradicate TB by year 2030. But India is going to eradicate this disease by 2025. तो यहाँ पे देखिए जो फोकस होगा इसके अंदर वो किस किस चीज़ों पे होगा। तो दे हैव प्रिवेंशन पे होगा, ट्रीटमेंट पे होगा, एक्सेसिबिलिटी एंड फ्री ऑफ कॉस्ट फैसिलिटीज़ फॉर प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। दिस विल बी द पिलर्स ऑफ anti-TB campaign, that is प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान। Now the next is center has banned export of broken rice due to domestic demand। तो देखेंगे कि यहाँ पे कुछ कुछ एरियाज में बारिश एरेक्टिव हुआ है, ठीक है। तो सोइंग ऑफ राइस हैज सीन अ ड्रॉप, सो देयर इज अ चांस दैट राइस प्रोडक्शन में फॉल ड्यू टू ड्रॉप इन पैडी सोइंग एरिया दिस खारिफ सीजन। खारिफ सीजन का मतलब रेनी सीजन के टाइम जो एग्रीकल्चर क्रॉप्स को जो ग्रो किया जाता है, दोज आर कॉल्ड एज खारिफ क्रॉप्स। नाउ सेंटर विच इज एक्सपेक्टिंग कि राइस प्रोडक्शन में फॉल, सो इट हैज बैंड द एक्सपोर्ट ऑफ ब्रोकन राइस, okay, which is mostly used as animal feed and as a component for ethanol production. The next is Rajasthan gets urban job scheme. So an urban employment guarantee scheme, it was launched in Rajasthan, okay. So here if you will just see that now this scheme, okay, will be on the lines of Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme. So but Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme is for rural area, but now for urban area also we have similar scheme like Manrega which has been launched by Rajasthan. The next is Vande Bharat production to begin in October. So Union Minister Ashwini Vaishnav on Friday has said Indian Railways had successfully completed the trials of the second generation Vande Bharat train, okay. अब देखिए रेलवे का एम क्या है। सो रेलवे का एम है टू रोल आउट 75 वंदे भारत बाय अगस्त 2023। इनकी जो स्पीड होती है वो कितनी होती है, 180 किलोमीटर पर आवर, एंड दे आर बीइंग मैन्युफैक्चर्ड एट इंटीग्रल कोच फैक्ट्री इन चेन्नई। Next is we are doing this news from last 3 days that Rajpath, which was earlier known as Kingsway in British era, now it has been renamed as कर्तव्य पथ। उसके बाद इंडिया गेट के पास एक कैनोपी है, वहाँ पे पहले जॉर्ज 5 का स्टैचू हुआ करता था, अब उसको रिप्लेस करके वहाँ पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस का स्टैचू लगाया गया है। द नेक्स्ट इज निपुण, NIPUN निपुण। तो पहले देखिए निपुण क्या है। तो गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च किया है दैट इज कॉल्ड एज निपुण। तो निपुण स्कीम के अंदर इफ यू विल जस्ट सी दैट इट चेक्स द चिल्ड्रंस फाउंडेशनल स्किल्स, ओके। फाउंडेशनल स्किल्स मतलब रीडिंग स्किल्स, बेसिक मैथमेटिकल स्किल्स एट द एंड ऑफ क्लास 3, okay. So it enables all children to attain the foundational skills by the year 2026-27, fine। तो अब इस चीज़ को टेस्ट करने के लिए कि बच्चों का क्या परफॉर्मेंस है एट द एंड ऑफ क्लास 3, एक बेंचमार्क डेवलप करने के लिए NCERT ने एक टेस्ट कंडक्ट किया, ओके, और यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के साथ टू असेस द फाउंडेशनल लर्निंग ऑफ स्टूडेंट्स। तो ये टेस्ट में आया
कि जो फाउंडेशनल लर्निंग है स्टूडेंट्स की वो रीजनल लैंग्वेजेस में या हिंदी में काफ़ी पुअर है, ठीक है। सो इफ यू विल जस्ट सी दैट अराउंड 53% ऑफ क्लास 3 स्टूडेंट्स इन 18 स्टेट्स सर्वेड फॉर हिंदी प्रोफिशिएंसी, ओके, दे हैड लिमिटेड नॉलेज और या नॉलेज नहीं था, और जो उनकी स्किल्स थी रीडिंग की और कॉम्प्रीहेंडिंग द लैंग्वेज वो भी काफ़ी पुअर थी। उसके बाद महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका एंड केरला दैट इट वाज पुअर विद 59 स्टूडेंट्स आइदर दे आर लैकिंग और डिस्प्लेइंग लिमिटेड स्किल्स इन देयर रीजनल लैंग्वेजेस। फिर 67% स्टूडेंट्स कुड नॉट परफॉर्म वेल इन Assamese in Assam and Meghalaya. Then in Kerala also 56% of the students could not read or comprehend Malayalam, and in Goa 59% could not do so in Konkani. तो अब देखिए इसका जो ये रिपोर्ट है विच इज़ कॉल्ड एज नेशनल रिपोर्ट ऑन बेंच मार्किंग ऑफ ओरल रीडिंग फ्लुएंसी विद रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन एंड न्यूमेरेसी। तो अब इस रिपोर्ट में ये आउटकम है दैट बेसिक स्किल्स आर पुअर इन रीजनल लैंग्वेजेस। बट इफ यू विल जस्ट सी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, इट एडवोकेट्स 3 लैंग्वेज फार्मूला, जिसमें से 2 लैंग्वेज जो हैं वो नेटिव टू इंडिया होना चाहिए, और at least till class 5 and preferably till class 8 the instruction should be in the mother tongue. Now the next is that we know that Queen Elizabeth, she is no more, so now Prince Charles, now he has become King Charles III, okay, and now he has declared his heir, that is William. Now William, who has been elevated to Prince of Wales, now he is the heir of Charles III. Fine. So here he has said that he is going to work for service of Britain and Commonwealth. The next is UN chief slams climate change insanity on Pakistan. तो देखिए यहाँ पे देखिए क्लाइमेट इनइक्विटी की बात हो रही है, वी आर टॉकिंग अबाउट क्लाइमेट इनइक्वालिटी। तो यहाँ पे क्लाइमेट इनइक्वालिटी की क्या बात हो रही है, सी पाकिस्तान इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर लेस देन 1% एमिशन, बट पाकिस्तान इज़ फेसिंग सुपर मानसून या मॉन्स्टर मानसून। पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा बाढ़ आ गया है, आप जानते ही होंगे, तो दैट इज़ बीइंग कॉल्ड एज मॉन्स्टर मानसून। सो मेन रीज़न फॉर मॉन्स्टर मानसून इज़ क्लाइमेट चेंज, ओके। सो व्हाट हैपेंस ओवर हियर, क्लाइमेट चेंज इट कीप्स द एयर वार्मर। अब वार्मर एयर दे कैन होल्ड मॉइस्चर, ओके, दे कैन होल्ड मॉइस्चर। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है एयर का, उसका जो कैपेसिटी है टू होल्ड द मॉइस्चर इट इंक्रीजेज, सो इट मीन्स वार्मर एयर लीड्स टू हैवी रेनफॉल। सो यहाँ पे क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या हो रहा है कि द एयर आर बिकमिंग वार्मर, दे आर होल्डिंग टू मच मॉइस्चर एंड गिविंग टू मच रेन इन अ स्पेसिफिक एरिया कॉजिंग फ्लड, ओके। सो यहाँ पे जो यूएन चीफ है एंटोनियो गुतरेस, व्हाइल ही वाज इन इस्लामाबाद, सो ही हैज सेड दैट बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज, okay, countries like Pakistan which has less than 1% emission, they are facing the problem, okay, where nearly 1400 people have died because of the flooding. उसके बाद पाकिस्तान कह रहा है कि to rebuild its economy it needs at least $10 billion. The next from economy we have FM, finance minister task RBI to whitelist legal loan apps to protect borrowers. So here we are talking about illegal loan apps, जिसके बारे में हमने कल भी पढ़ा था। मैंने आपको बताया था कि कैसे कुछ ऐप्स हैं जिनको आरबीआई लाइसेंस नहीं देती है टू गिव द लोन्स, तो वो डिफंक्ट एनबीएफसीज के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग करते हैं, ठीक है, और उसके बाद वो लोन देना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, शॉर्ट टर्म लोन देते हैं स्पेशली टू मिडिल इनकम, लो इनकम पीपल, and then they charge very high exorbitant interest rates and then they intimidate it also. There is also privacy concerns. तो अब हमने उसके बाद पढ़ा था कि आरबीआई ने एक वर्किंग ग्रुप बनाई थी डिजिटल लैंडिंग के ऊपर, वेयर दिस वर्किंग ग्रुप ऑन डिजिटल लैंडिंग इट हैड आइडेंटिफाइड 600 इलीगल लैंडिंग एप्स विच वर ऑपरेटिंग इन इंडिया। फाइन, तो उसके बाद हम अगर देखेंगे कि 27 अनलॉफुल लोन लैंडिंग जो एप्स हैं उनको ब्लॉक भी किया गया था। दे वर ब्लॉक्ड अंडर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोसीजर एंड सेफगार्ड्स फॉर ब्लॉकिंग फॉर एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर पब्लिक रूल्स 2009। इट कम्स अंडर सेक्शन 69A ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। उसके बाद पिछले महीने अगस्त 10 में आरबीआई ने एक नया रेगुलेशन निकाला, रूल निकाला कि जो भी लोन डिसबर्सल है
या कोई भी लोन का रीपेमेंट है, इट विल बी एग्जीक्यूटेड ओनली फ्रॉम द बोरोवर्स अकाउंट्स एंड रेगुलेटेड एंटिटीज लाइक बैंक्स एंड एनबीएफसीज, बट नॉट विद एनी थर्ड पार्टी। कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होगी अगर लोन या उसका इंटरेस्ट का पेमेंट चल रहा है तो। फाइन, नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज दैट नाउ फाइनेंस मिनिस्टर हैज आस्क्ड आरबीआई टू वाइट लिस्ट लीगल लोन एप्स टू प्रोटेक्ट बोरोवर्स। मतलब एक ऐसा लिस्ट बनाइए जिसमें जो लीगल लोन एप्स हैं बस उन्हीं का नाम होना चाहिए, उसके अलावा फाइन सबको जो है बैन कर दिया जाएगा। फाइन, तो यहाँ पे सी टू कर्ब द मीनेक ऑफ इलीगल लोन एप्स द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ बीन आस्क्ड टू प्रिपेयर अ वाइट लिस्ट ऑफ लीगल लोन एप्स एंड they have also asked to MeitY, that is Ministry of Electronics and Information Technology, to ensure that only such applications are available on app stores। मतलब जो इलीगल लोन एप्स है उनको ऐप स्टोर से हटा दिया जाए। ओके, नाउ कमिंग टू स्पोर्ट्स, सो नीरज चोपड़ा, he becomes the first Indian to win a Diamond League title। Okay, so he is a Olympic gold medalist in javelin throw and now he has also won the gold at Diamond League। और यहाँ पे जो ओलंपिक के जो सिल्वर मेडलिस्ट थे जैकोब वेदलेच ऑफ चेक रिपब्लिक, ही हैज़ फिनिश्ड सेकेंड एंड जूलियन वेबर ही हैज़ फिनिश्ड थर्ड। ओके, यहाँ पे अगर हम देखेंगे दैट नीरज चोपड़ा इसके पहले भी डायमंड लीग में पार्टिसिपेट किए थे इन 2017 एंड 18 वेर ही फिनिश्ड 7th and 4th रिस्पेक्टिवली। अब इनको जो है डायमंड ट्रॉफी मिला है, $30,000 प्राइज मनी मिला है एंड वाइल्ड कार्ड फॉर 2023 वर्ल्ड एथलेटिक चैम्पियनशिप विच विल बी हेल्ड इन बुडापेस्ट। आप जानते ही होंगे कि रिसेंटली वर्ल्ड एथलेटिक चैम्पियनशिप हुआ था, वहाँ पे इन्होंने ही बिकेम द सेकेंड इंडियन टू विन द सिल्वर मेडल। अर्लियर इन 2003 अंजू बॉबी जॉर्ज बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू विन अ ब्रॉन्ज मेडल एट वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप। अब जो 2023 का जो वर्ल्ड एथलेटिक चैम्पियनशिप है वो होने वाला है बुडापेस्ट। नाउ फ्रॉम एडिटोरियल वी हैव वन एडिटोरियल विच इज़ इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ मूविंग आउट ऑफ शेडोज फ्रॉम साइलेंस टू असर्शन। तो यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट द मुस्लिम वुमेन, सो आई एम जस्ट गोइंग टू डिस्कस द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। सो तलाक़ हसन, तो यहाँ पे तलाक़ हसन ये क्या है? इट इज़ अ डाइवोर्स विच इज़ प्रोनाउंस टू वाइफ वंस अ मंथ फॉर 3 months। ओके, तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के एक जज हैं Justice S.K. Kaul, so he has observed that the practice of talaq-e-hasan is not so improper। ठीक है, then the judge M.M. Sundaresh, he has also said that mubarat or mutual consent, okay, should be explored, okay, for divorces। Then judges have also referred to the option of khula or Muslim women's right to divorce as well। So over here if you will just see that the article says that moving out of the shadows from silence to assertion। Okay, so Muslim women in India, they are beginning to seek judicial recourse to assert their rights। So it is talking about that। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो the things are now changing। तो जैसे हम देखेंगे कि ट्रिपल तलाक को पहले सुप्रीम कोर्ट ने इनवैलिड किया इन 2017। ओके, देन देयर वाज केरला हाई कोर्ट जजमेंट ऑफ 2021 विच upheld the validity of खुला। ओके, देन इफ़ यू विल जस्ट सी कि अगर हम पास्ट में अगर जाते हैं तो या वी विल सी दैट देयर वाज अ पेटिशन रिलेटेड टू हाजी अली दरगाह केस इन 2016 वेयर मुस्लिम वुमेन वोन द राइट टू एंटर द दरगाह सैंक्टम। पहले वुमेन को दरगाह के जो सैंक्टम सैंक्टोरम है वहाँ पे अलाउड नहीं था, बट नाउ दे वन द पेटिशन टू एंटर दैट ऑल्सो। द नेक्स्ट इज स्टेइंग द कोर्स। तो एक बार हम फटाफट डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि कल हमने डिस्कस किया था about the finance minister Nirmala Sitharaman saying that in India's inflation battle signaling is not a red lettered priority but creating job, sustaining growth and ensuring equitable wealth distribution is the priority। तो हमने इन्फ्लेशन के बारे में पढ़ा है कि अप्रैल में it became 8-year high, that is 7.8%। now it has dipped to 6.71% but it is still above the 6% tolerance limit। उसके बाद जो रूरल इन्फ्लेशन है इट इज़ राइजिंग वेरी फास्ट, ओके, एज़ कम्पेयर टू अर्बन इन्फ्लेशन। ठीक है, अगस्त का जो इन्फ्लेशन है वो थोड़ा सा कम हुआ है, बट आरबीआई बिलीव्स दैट इन्फ्लेशन ओके हैज़ पीक्ड इन इंडिया। बट जो डेप्यूटी गवर्नर है माइकल पात्रा, ही सेज दैट वी हैव टू लुक फॉर दिस मंथ्स डेटा ऑल्सो दैट मे बी
the food prices can rise again, which has the highest weightage in the index and which can again drive the inflation in India. So friends, that's all for today. We will meet tomorrow next week with the daily Hindu analysis. Till then, have a nice time. Take care. Thank you.